रंजनी, गुड मॉर्निंग रंजनी। लेकिन ये बताओ, कल तुम नहीं थी ट्यूट क्लास में? कहाँ गए थे? अच्छा, तो यहाँ नेट तो चलता है बेटा। नेट तो यहाँ चलता है। अच्छा, बहुत कम लोगों ने क्लास ज्वाइन किया है अभी तक। स्क्रीन इज विजिबल नाउ। राज, बहुत बच्चे कम ज्वाइन किए, क्या दिक्कत है? कुछ तो यहाँ घूम रहे हैं। हम्म।
Screen is visible, clear? Is it clear? आवाज में दिक्कत है? हेलो? ठीक. So today I am going to discuss about the CRM, Customer Relationship Management. Customer Relationship Management is very important topic as ERP and SCM, Supply Chain Management. जिस तरह ये एक आपका प्रोडक्ट था, ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक था इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम और द डेवलपमेंट प्रोसीजर or the system by which you are very much effectively reach your customer, which will be a beneficial step for your organization in long term. Okay, so CRM जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाउअडेज एक फैक्टर बन गया है टू ग्रोथ फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन. क्या बहुत सारे लोग आज फॉर्म जमा करने कॉलेज आ रहे हैं क्या? Because only 33 students are present this time. मैंने एक दो लोग को कॉलेज में भी देखा, वासिक मुस्तफा भी मुझे दिखे हुए हैं. अरे यहाँ के आने के बाद भी तो लोग जो है आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं. यहाँ कॉलेज में अच्छा नेटवर्क चलता है. मैं भी अपने ही पर्सनल नेटवर्क से कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ. क्यों राज? चलिए कोई बात नहीं. कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट is an important and key topic during any software development or information system development procedure. So CRM means customer relationship management is work as a cooperative and collaborative process. The basic important feature of CRM is that it work as a cooperative and collaborative process. This is the key factor of CRM, customer relationship management. So the basic purpose is mutual value creation on the part of market as well as customer. ठीक है, यहां पे ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ हो. ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज ओनली डेवलप्ड और डील्स विद द satisfaction level of your customer or the end user. We already discussed about the ERP and supply chain management. These basic purpose, the product of these names as SCM and ERP, the basic purpose of these product is also to beneficial and the benefit for your customer or end user. I already told you many times that customer or user is your prime asset, long-term asset. So customer relationship management with sometime refer the marketing or one-to-one marketing is defined as a integration of process, culture and customs to recognize the differentiation among customer service and development. These are the most important and valuable part of any organization. So nowadays customer becomes a market.
Customer is the key factor to influence the market. समझ रहे हैं आप? बहुत सारे प्रोडक्ट को, बहुत सारे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी को सक्सेस या फेल्यूर अगर डिसाइड करना, या इस आप पर्सपेक्टिव से एनालाइज करते हैं। आपने देखा होगा कोई प्रोडक्ट आप जब भी परचेज करते हैं या कोई भी प्रोडक्ट आप खरीदते हैं तो सबसे पहले उसकी रिव्यू आप देख लीजिए। वो रिव्यू कंपनी तो जो दे रही है वो दे रही है अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन कस्टमर के ऑनलाइन रिव्यू इज आल्सो रिकॉर्डेड सो दैट द कस्टमर इज डायरेक्टली मोटिवेटेड टू बाय दैट प्रोडक्ट or go to the service provider. Service provider means developer, style of working, features provided by that particular company or the organization, themes of that organization, good features of that organization, problem solving approach of that organization. So this is carry or advertise by the customer to the customer. कस्टमर से और कस्टमर के लिए ही होता है। We also plan a induction program for your junior. लगभग अभी मुझे लग रहा है 15 डेज पहले जो हम लोग का इंडक्शन प्रोग्राम चला था, 25 नवंबर से लेकर के या 26 नवंबर से लेकर के अपना 30 नवंबर तक, उसमें हमने आपके जो है कुछ अच्छे बच्चों जो आपके यहाँ ग्रुप में हैं इनको भी इंक्लूड किया था उस प्रोग्राम को सक्सेसफुल करने के लिए। बिकॉज स्टूडेंट कैन अंडरस्टैंड, they are able to make their mind convinced by the talk or the experiences shared by their seniors or student like him, जो उनके जैसे हो। एक साल उन्होंने यहाँ पे अपना अपना जो है पढ़ाई की है, एक्सपीरियंस लिया है, उसको अगर वो खुद से बताएं अपने जूनियर को, न्यू कमर्स को, रादर देन अ टीचर लाइक मी एक्सप्लेन द रूल रेगुलेशन प्रोसीजर एंड द व्यूज इन पॉइंट ऑफ योर्स एज ए स्टूडेंट, there is some students and there is a hesitation to accept these rules, norms, thoughts, experience shared by me. और जब आप बताएंगे तो वो इजिली उसको हैंडल कर पाते हैं, बिजली समझ पाते हैं। और आप जब बताएंगे अपने एक्सपीरियंस से बताएंगे, जब मैं बताऊंगा मैं अपनी किसी बात को रखूंगा तो मैं अपने एक्सपीरियंस से करूंगा। So there is a gap between the service provider and the actual user. So CRM is also this type of platform where customer to customer advertisement is also carried out, and it is a big tool, big successful tool for any organization where this type of democratic platform is provided to the end user or the customer. So a CRM provides these type of benefits. Okay, now come to the definition. Definition of CRM. Can anybody tell me about these discussions till now? The definition of CRM. कोई बताएगा? मधुर, इस हमारे डिस्कशन के बेस पे अगर आपको कोई इसकी सुटेबल डेफिनेशन समझ में आ रही हो। सक्सेसफुल रहे। ओके, अंजलि।
गुड गुड गुड, समझ में आया कॉन्सेप्ट। देखिए डेफिनेशन मैं भी बताऊंगा, थोड़े टेक्निकल पॉइंट बताऊंगा, लेकिन आप दोनों लोग ने भी ठीक डेफिनेशन बताई है। इट इज गुड, इट इज वेरी गुड साइन दैट यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द टॉपिक। The main concern in mind that you must understand the topic, the theme of the topic। अगर आपको वो समझ में आ रहा है तो ऑटोमेटिकली जो बेसिक्स है, जो फंडामेंटल्स है, जो कॉन्सेप्ट है, वो आपको समझ में आ जाएंगे। अंजलि, डे बिफोर यस्टरडे यू केम द कॉलेज, मिली नहीं थी मुझसे। मैं तो 5 बजे तक था। अच्छा अच्छा, और बुक वगैरह इशू हो पाई, नहीं हो पाई? तुम यही लखनऊ में रहती हो ना? हाँ, रायबरेली से। ठीक, बुक लेते रहिए। राज राठौर तुमको मिल गई अप्रोप्रिएट किताब? हम्म, ठीक ठीक। तो पेज नंबर वगैरह सब आप मैच कर लीजिए, लगभग वही होंगे। उसको उस टाइप की बुक में वही पेज नंबर चल रहे थे। सो नाउ कम टू द डेफिनेशन ऑफ सीआरएम। मैं भी इन्हीं डिस्कशन, इसी थॉट पे ही डेफिनेशन को यहां पे बनाऊंगा और यही टर्म यूज करेंगे। सो सीआरएम इज बिजनेस स्ट्रेटजी, जैसे अंजलि ने कहा स्ट्रेटजी, बट इट इज नोन एज बिजनेस स्ट्रेटजी दैट एम्स, या जिसका गोल टू अंडरस्टैंड, एंड मैनेज द नीड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन and its potential or valuable customer। CRM is a business strategy that aims to understand and manage the need of organization and its customer, valuable or potential customer। समझ रहे हैं? सीआरएम ये टूल या मेथड है, ये टेक्नोलॉजी है। दिस इज आल्सो बिकम्स अ मॉडल और प्रोडक्ट जिससे कि यूजर और ऑर्गेनाइजेशन एक दूसरे की नीड्स को समझते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑलवेज ट्राई टू सेटिस्फाई देयर कस्टमर, दिस इज द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, एंड यूजर इज आल्सो wants that organization always back to them whenever he or she use that product, buy that product and use the services of that particular service provider or the company। ये ना हो कि एक बार आपने प्रोडक्ट खरीद लिया और उसके बाद अपना पीछा छुड़ा लिया आपने उससे, उसके बाद आप उनको जानते ही नहीं है, उसके बाद उनकी किसी भी रिक्वायरमेंट से उनका कोई लेना देना नहीं है। ये ऐसा ना हो पाए। कुशाग्र, भैया क्यों एब्सेंट हो रहे हो? लेट से भी ज्वाइन किया है। कल तुम एब्सेंट थे और उसके पहले ही बहुत छुट्टियां हो चुकी हैं। ना करो ऐसा बेटा। हाँ, ठीक। So CRM is the basic techniques by the organization and the customer are bind into a single unit or bind into the form of a capsule। These are not in individual gradient,
ये कंबाइंड फॉर्म में ही अच्छी तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। एंड इट आल्सो इनकॉर्पोरेट स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी एंड कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच। स्टैंडर्ड टेक्नोलॉजी विल बी देयर टू implement the CRM and comprehensive approach must be there to achieve the common goal, both organization and the user। समझ रहे हैं, ये दोनों के लिए ही जरूरी है। नाउ कम टू द पर्पस। पर्पस ऑफ द CRM, कम टू द पर्पस ऑफ द CRM। पहला, फर्स्ट वन इज क्रिएटिंग वैल्यू फॉर कस्टमर। Is it visible to all of you? It is understandable whatever I am writing here. Creating value for customer, समझ में आ रहा है, दिख रहा है हर्ष? समझ में आ रहा है? लिखा है मैंने वो जो दिख रहा है। अच्छा है मधु? है नहीं, मुझे मेरे यहां तो ठीक चल रहा है बेटा, साफ दिख रहा है। वट एवर आई एम सेइंग, हाँ मैं जो बोल रहा हूं आप सुन पा रहे हैं? पूरी तरह से आवाज आ रही, क्लियर? अच्छा, अब देखिए नाउ। एक मिनट, आप देखिए। तो क्रिएटिंग वैल्यू फॉर कस्टमर, सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, गेन competitive advantage। My voice is clear to all of you? है ना, आवाज आ रही, पॉइंट समझ में आ रहे हैं? सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, गेन competitive advantage। So first purpose is creating value for customer, second purpose is gain competitive advantage, थर्ड पर्पज, मेन इंपॉर्टेंट पर्पज है CRM का, इट इज कस्टमर फोकस्ड। CRM deals with that particular of attitude that all product must be beneficial for the customer. The product is only made or developed for its customer, and I already told you each and every product in our industry as software development, so these products are specially customized। ये नहीं कि हमने एक मोबाइल फोन बना दिया तो वो सबके लिए है, ये हार्डवेयर नहीं है, हमारा सॉफ्टवेयर है। तो सॉफ्टवेयर जो है, दीज आर द कस्टमाइज्ड, दिस इज बिल्ट टू केप्ट इन माइंड that particular thought that this product is only developed for the X person or the X user for their purpose only, so customer focused। And also it is important tool that is known as market research। market research, so it's another an important purpose
by using CRM, because by using the CRM you are able to collect the feedback responses from the customer. So market value, trend of market is also possible by this particular of tool, model or the product which is CRM. CRM से ही आप पता लगा सकते हैं कि मार्केट में इस समय क्या चल रहा है, व्हाट इज द डिमांड ऑफ द कस्टमर, व्हाट इज द चॉइस ऑफ द कस्टमर। जो हमने प्रोडक्ट बनाया वो कस्टमर किस तरह से उसको हैंडल कर रहा है, आर इट इज सेटिस्फैक्टरी टू फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट, इज इट फीजिबल। तो ये सारे पर्पस जो हैं ये सीआरएम के हैं। सीआरएम से आपको ये पता चलता है, समझ रहे हैं। सीआरएम के थ्रू ही कंपनीज को, ऑर्गेनाइजेशन को, टॉप पर्सनल, एग्जीक्यूटिव ऑफर्स, जो आपके ऑफिसर्स होते हैं, उनको ये पता चलता है कि ये प्रोडक्ट के बारे में व्हाट इज द ओपिनियन। नाउ कम टू द प्रोसेस इन सीआरएम। Process in CRM. There are key processes in CRM. First one is marketing. I already told you marketing is the prime role and objective of CRM. Why I am saying that customer is the important asset. If customer will be satisfied with your product, it will already a marketing tool, advertisement tool. It market or advertise your product to other customer. So ये customer to customer जो interaction है उसका भी एक मैकेनिज्म है, एक प्लेटफॉर्म है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेलिंग। मार्केटिंग के साथ साथ सेलिंग। इफ द कस्टमर विल सेटिस्फाई with your product or the service or your problem solving approach, your selling, जो आपकी सेलिंग प्रोसेस है या सेलिंग है, ये ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। इट डायरेक्टली रिलेट द सेटिस्फैक्शन ऑफ द कस्टमर, द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑफ द कस्टमर इट डायरेक्टली इंक्रीज द सेलिंग प्रोसेस। ठीक है, सेल्स आपकी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। थर्ड इंपॉर्टेंट स्टेप इज देयर और द प्रोसेस ऑर्डर मैनेजमेंट। ऑर्डर मैनेजमेंट जो ये प्रोसेस है कंपनी का, ऑर्डर मैनेजमेंट। इफ मार्केट इज गुड, प्रॉपर सेलिंग इज गोइंग ऑन, तो आपको ऑर्डर भी मिलने लगेंगे, ऑर्डर भी मैनेज हो जाएंगे। ऑर्डर मैनेजमेंट इज आल्सो डील विद द डिमांड एंड सप्लाई। जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है वो भी इससे रिलेट हो जाएगी और उसके फंक्शंस अकॉर्डिंगली प्रोसेस होने लगेंगे। आपको न्यू ऑर्डर मिलने लगेंगे, नई डिमांड आपके पास आएगी और सप्लाई चेन मैनेजमेंट के थ्रू वो सप्लाई भी यूजर तक पहुंच जाएगी। सो दिस प्रोसेस इज ऑलरेडी कैरीड आउट। दिस इज इनबिल्ट प्रोसेस इन सीआरएम। और फोर्थ है इंपॉर्टेंट आपका सर्विस सेंटर्स। You must establish to facilitate your customer at different location. So there is a requirement and you do that in pleasant manner to establish new and more service centers, service provider centers by which the customer can reach easily and rectify their problems. तो दीज आर द प्रोसेसेस ऑफ सीआरएम। आप सभी जानते हैं, हम लोग कोई भी फोन ले, लैपटॉप ले, इन सबके सर्विस सेंटर बने होते हैं। दीज आर द नोन आर द प्रोडक्ट ऑफ टाइप सीआरएम, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ये उसी का एक एग्जाम्पल है। स्टोर्स जो बने होते हैं, एमआई का स्टोर है, सैमसंग का स्टोर है, सर्विस सेंटर है, ये कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के ही प्रोसेस के अंडर में आते हैं, जिससे कि कस्टमर की कोई भी प्रॉब्लम को ये डील कर पाते हैं। हर काम तो कंपनी खुद नहीं कर पाएगी, और अगर सारे काम कंपनी करेगी
एक फिक्स लोकेशन पे करेगी तो टाइम बहुत लगेगा और जो आपका परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है इट विल डिक्रीज, जो रिस्पॉन्स टाइम है इट विल डिलेड, रिस्पॉन्स टाइम आपका डिलेड हो जाएगा। तो इसलिए आउटलेट्स, सर्विस सेंटर्स, फ्रेंचाइजीज आर इंस्टॉल्ड and established nearby the customer or the range of reachability of the customer. So these are the 4 processes in CRM. So everyone understand these topics, whatever I told till now? सभी लोग को समझ में आ रहा है? कोई टॉपिक दोबारा बताने की जरूरत है? कौन बोल रहा है? हैं? अच्छा, कौन से 2 पॉइंट बता दे? अब आ रही है एकदम टनाटन। मार्केटिंग का मतलब ये हुआ बेटा कि whenever your customer is satisfied, it will definitely advertise or market your product. There is an individual capacity of the customer that he or she can advertise more than 10 people or personnel. This is the average score, whatever I am going to telling you. अगर एक कन्विंस्ड यूजर, सेटिस्फाइड यूजर अपने आपके प्रोडक्ट को, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करता है तो वो 10 या उससे ज्यादा लोगों को कन्विंस कर लेगा, है एडवर्टीज कर देगा उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में, और उनमें से 5 to 6% will be definitely motivated to take or buy your product or service. So CRM has that kind of capacity. Selling, as soon as your marketing, your advertisement about the product goes high, increase, your selling will be increase, your sales book will be going to fill, बढ़ती चली जाएगी, सेलिंग आपकी इंक्रीज होती चली जाएगी। और जब सेलिंग होती चली जा रही है तो ऑर्डर मैनेज होने लगेंगे, नए ऑर्डर मिलने लगेंगे, डिमांड सप्लाई का जो गैप था वो अब आपका गैप नहीं रहेगा, फ्रीज जो था वो सिस्टम फ्रीज नहीं रहेगा, ये लिक्विडिटी फॉर्म में रहेगा, लिक्विड हो जाएगा और फ्लो करने लगेगा। एंड द सर्विस सेंटर, इट इज आल्सो की एस्पेक्ट्स और द इनबिल्ट फीचर ऑफ CRM, so that different type user at different location may reach with their problems at specific location and go back their home or location by a solve or the solution, solve problem or with a good solution with a satisfactory manner. So these are the main processes in CRM. Okay, comfortable? Now come to the benefits of CRM. Benefits oblique advantages. Benefits and advantages of CRM. ये सभी को अब दिख रहा है? अब तो कोई दिक्कत नहीं है इस समय? क्या दिक्कत हो गई? फर्स्ट पॉइंट इज रिड्यूस कॉस्ट, अंजलि कैसा आ रहा है? आश्रय, अच्छा, तो all are required to view this video lecture, it is very important. Okay, हाँ, it is
all of you that is required, view definitely this particular lecture and note the point where you find any problem. और उसके बाद जो भी मेरी कल फर्स्ट ग्रुप के बच्चे तो कल ही ट्यूट में मुझसे पूछ सकते हैं, और बाकी लोग भी फ्राइडे को जब मैं आप इस लेक्चर को और मैं और एक बार इसको विद द हेल्प ऑफ पीपीटी उसमें जो है मैं आपको दोबारा से इसको और एक्सप्लोर कर दूंगा और अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। हाँ, तो मैं और अच्छे से इसको एक्सप्लोर कर दूंगा और अच्छे से समझा दूंगा। आई हैव लॉट ऑफ टाइम, डोंट वरी, आई विल रिपीट। और लेकिन इससे पहले इस लेक्चर को, वीडियो लेक्चर को जो मैं अपलोड करूंगा गूगल क्लासरूम में बाय द एंड ऑफ द डे, हो सकता है आफ्टरनून में ही कर दूंगा, ठीक है। तो इसको जरूर देख लीजिएगा, इसके पॉइंट नोट कर लीजिएगा, ओके। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिड्यूस कॉस्ट। सीआरएम जो है, जैसे मैंने आपको बताया, सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड ईआरपी, दे आर आल्सो अ टूल टू रिड्यूस कॉस्ट। सीआरएम आल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। समझ लीजिए, जितने भी है वो सब में रिड्यूस कॉस्ट तो जरूर होगी, इसीलिए ये सारे एप्लीकेबल है और इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और यूज होते हैं। सेकेंड, इंक्रीज्ड कस्टमर सेटिस्फेक्शन। increased customer satisfaction. CRM is the tool by which customer satisfaction automatically increased. It is the tool the customer 100% satisfied with their services of the organization. भाई मैंने आपको प्रोडक्ट बेचा, उसके बाद मैं आपको हमेशा मेंटेनेंस प्रोवाइड कर रहा हूँ, गाइड करने के लिए हमेशा तैयार हूँ। आपकी सारी प्रॉब्लम किसी भी जगह किसी भी फेज पे आती है तो उसको हैंडल करने के लिए, आपको बैक करने के लिए तैयार है। डेफिनेटली यू विल बी सेटिस्फाइड विद माय सर्विसेज। समझ रहे हैं, प्रोडक्ट का फेलियर और सक्सेस के बीच में डिफरेंस है सिर्फ सर्विस का, एंड कस्टमर विल बी डेफिनेटली सेटिस्फाइड। Third important, ensure that focus of organization is external growth in number of customers, ठीक है। तो जैसी जैसी इस पे भी ध्यान रखता है, आई एम सेइंग कि ये जरूरी नहीं कि सिर्फ इंडिविजुअल कस्टमर, ये नहीं होगी जो एंड यूजर है। जब एंड यूजर सेटिस्फाई होगा, कस्टमर ग्रोथ, सॉरी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होगी, तो जो वहां पे एम्प्लॉय है, पर्सनल वर्क फॉर दैट ऑर्गेनाइजेशन इज द की पर्सन बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन और द टॉप एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड द एंड यूजर, they will also benefited and they will also satisfied. Their perks, their salaries will increase, they will awarded by bonus, तो ऑटोमेटिकली वे भी बेनिफिशियल रहेंगे। फोर्थ, मैक्सिमाइजेशन of opportunities. This is the product by which you are able to lot of alternatives or opportunities about their products. The number of opportunities will be there, competition will be there, and जब भी कंपटीशन होता है तो हमेशा उसमें कस्टमर का ही फायदा होता है। Also, it is the tool that highlighting poor operational process. देखिए, ये तो एक कॉन्सेप्चुअल थ्योरी है कि जब whenever you follow any mechanism or the process, so weaknesses and strengths
ऑलवेज हाईलाइटेड। जब आप एक सिस्टमाइज तरीके से काम करेंगे तो उसकी वीकनेसेस और स्ट्रेंथ हमेशा हाईलाइट होगी। सो इट्स हाईलाइटिंग पुअर ऑपरेशनल प्रोसेस वट एवर डील्ड बाई द और द प्रैक्टिसेस बाई द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट इज इंडिकेशन टू इंप्रूव दियर फैसिलिटी। समझ रहे? जैसे कि हम कोई भी टेस्ट लेते हैं, कोई भी आपका एग्जाम लेते हैं, तो उस टेस्ट से आपका चेक हो जाता है परफॉर्मेंस, आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस को इवेलुएट कर पाते हैं, आपके कैलिबर को चेक कर पाते हैं। कुछ लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, कुछ लोग नहीं परफॉर्म कर पाते, तो उनकी वीकनेसेस हमें पता चल जाती। इसी तरह से सीआरएम यूज करने से जो कंपनीज की पॉलिसी और प्रोसेसिंग में कहीं कोई वीकनेस है, कोई कोई एरर है, वो भी रेक्टिफाई हो जाती है। एंड लास्ट, लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। Long term profitability and sustainability. I already told you whether it is ERP, whether it is SCM, whether this is CRM. These are the tools or the product for long time of benefits, long term of profitability and sustainability. Okay, now come to the disadvantages or cons. There are some disadvantages. पहला, बिल्कुल जो आपका ईआरपी का था इसका भी यही है, रिक्वायर्ड ट्रेनिंग। एक इसका डिसएडवांटेज है, लिमिटेशन है, बाकी तो बहुत बड़े डिसएडवांटेज नहीं होते हैं। इट रिक्वायर्स ट्रेनिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट। इसलिए मैंने कॉस्ट का यहां नाम लिख दिया, इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट। कॉस्ट मतलब आपको बजट यहां पे अलॉट करना पड़ेगा, इस प्रोडक्ट को यूज करना है, इस प्रोडक्ट को इंप्लीमेंट करना है, तो इंप्लीमेंटेशन कॉस्ट विल बी देयर। सम बजट मस्ट बी अलॉटेड फॉर दिस पर्टिकुलर पर्पस। So these are some limitation and definitely train to your people to use that particular of product. These are some limitation or the disadvantages. So this is all about the customer relationship management. So all are required. Definitely view this video lecture today and note any weaknesses or the shortcomings या आपको लग रहा है कुछ ऐसे points, then Friday I will discuss in that particular lecture and cover as a revision the points in lecture. There I think also सरप्राइज टेस्ट भी आपके, मुझे लग रहा है सबके पास सरप्राइज टेस्ट आया होगा टुडे। आया है? तो सभी लोग सरप्राइज टेस्ट जरूर देना शुरू कर दीजिए और अटेंडेंस चेक बॉक्स, आपकी अटेंडेंस उन्हीं को मिलेगी। सभी लोग चैट बॉक्स पे अटेंडेंस लिख दीजिए। जल्दी, हरी अप।